ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं कोई न सके पछानी। ਭਾਰਤੀ ਭਗਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤਾ ਆਗਮਨ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਭਗਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਡਿੰਬ ਪਖੰਡ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਪ ਨੇ ਸੱਚ ਦਸੀ, ਦਇਆ ਦਸੀ, ਸੰਤੋਖ ਦਸੀ। ਜੇਠ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਬਿਕਮੇ ਸੰਮਤ 1455 ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਨੀਮੋ ਨੀਰਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਤੋਂ ਬਾਲਾਤਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਲ ਹੈ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਰਾਮ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨੇ। ਆਮ ਅਵਤਾਰੀ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਕਾਲ ਬੜੇ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਆਏ, ਜਦ ਕਿ ਜਗਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬਾਲਕ ਅਕਸਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅੰਤ ਵੀ ਅਕਸਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸੇ ਵੰਡਣੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵੰਡਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਮੋ ਨੀਰਾ ਅਧਕੜ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਅਦੁੱਤੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ। ਬਚਪਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਅਗੰਮੀ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਪਰ ਗੱਲ ਆਗਮ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਖੇਡਣ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਪਰ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਰਾਮ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਖੇਡ ਦੇ 'ਚ ਰੁਚੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆਪ ਲਈ ਬੰਦ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪ ਜੁਲਾਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਣ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਸ਼ੂਦਰ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੁਆਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆਪ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਇਹ ਮਨੋਤ ਸੀ ਕਿ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਭਗਤ ਸੰਤ ਜਨ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੀਮਾ
ਤੇ ਨੀਰੂ ਜੁਲਾਹਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਨੀਮੂ ਤੇ ਨੀਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। कबीर ने अपनी ज़ात छुपाई नहीं, कबीर मेरी ज़ात को सब कोई हंसने हार, बलहारी इस जात को जै जप्यो सिरजनहार। की ज़ात है जात जुलाहा, मत का धीर, सहज सहज गुण रवे कबीर। गल स्पष्ट कर दी, ज़ात दा मैं जुलाहा, वर्ण करके मैं शूद्र हाँ। इसलिए मैं जगत के सामने वो विचारां रखदा कि मनुख नाल ना कोई वर्ण जोड़िया जाए, मनुख नाल ना कोई जात जोड़ी जाए। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदे ते सब उत्पाती। ये कबीर दे बोल ने। जात दा जन्म शरीर दे जन्म दे नाल है, वर्ण दा जन्म शरीर दे जन्म दे नाल है। ते कबीर कहंदे मैं इस शरीर तो पहले भी सी, जद मैं पहले भी सी ते इस वर्ण का, इस जात का मेरे नाल जोड़ना एक बच्चों की खेल है। लेकिन बड़े बड़े आलम विद्वान भी कई दफ़ा इस तरह की बच्चों की खेल करते हैं। सारी मनुखता नूं साडे देश के मुखी लोगों ने 4 हिस्सों में वंड के रखिया होया सी, जिस तो कबीर बिल्कुल इनकारी होए। इस वंड नूं मनण तो आपने बिल्कुल इनकार कर दिता। आपने स्पष्ट रूप में कह दिता, जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। मेरे शरीर नूं कोई चीरे ते लहू निकलदा है, पर ऐ ब्राह्मण तेरे शरीर नूं कोई चीरे ते दुध थोड़ी निकलदा है, उस दे विच भी ते लहू ही निकलदा है। मेरे शरीर दे अंदर हड्ड मांस मिंज और दुर्गंधी इत्यादि है, तेरे शरीर दे विच भी ते यही कुछ है। शरीरक तल ते अपने ब्राह्मण होने का सबूत दे कि तेरे ते मेरे च फर्क की है। फर्क होंदा है मन दे च, फर्क होंदा है विचारां दे च, फर्क होंदा है सोचने दे च। और मेरे विचारां दे च परमात्मा है, मेरे विचारां दे च सच है, मेरे विचारां दे च ईश्वर है, मेरी सोच मंडल दे च परमात्मा है। इस वास्ते मैं ते उसनूं ब्राह्मण मनदा। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। शरीर दे तल ते ना कोई नीवा है, ना कोई उच्चा है। विचार दे तल ते मनुख नीवा है, मनुख उच्चा है। हकीकत है जिस दे विचार नीवे ने वो नीवा है, जिस दे विचार उच्चे ने वो उच्चा है। तो कबीर कहंदे मेरे विचार ब्रह्म जैसे ने, पर अक्सर मनुख की दृष्टि शरीर ते ही रुकती है। कैसी एक अगम्मी गाथा है साडे देश दे प्रचलित कि ऋषि अष्टावकर जो अपने शरीर दे 8 बल रखते सन, लत्तां टेढ़ियां, बावां टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, गर्म जो है लक टेढ़ा, गरस के सारा शरीर 8 बलों दे बकायदा विंगा होया होया। कहंदे ने जनक दी सभा दे जद आप दा अचानक आना होया, क्योंकि आप दे पिता राजगुरु सन ते किसी कारण करके आप पिता नूं ही बुलाण वास्ते आए। ते शरीर दे ये 8 बल वेख के जनक दी सभा दे बैठे हुए ब्राह्मण हस पे। और हसी दे माहौल सी, हसी दे तनस सी, हसी दे निंदा सी, हसी दे चोट सी। चोट करनी होवे किसे ते मनुख रो के भी चोट कर सकता है, हस के भी चोट कर सकता है। चोट करनी होवे किसे ते मनुख ने तां ओ अपमान करके भी चोट कर सकता है, सन्मान दे के भी चोट कर सकता है। चोट करनी होवे किसे ते हकीकत है किसे दी इज्जत करके भी चोट की जा सकती है, बेइज्जती करके भी चोट की जा सकती है। किसे दा देना भी दरअसल खोना आउंदा है, ते कई दफ़ा किसे दा खोना भी वास्तविक देना आउंदा है। इस हंसी दे बहुत गहरी चोट सी अष्टावकर नूं लगी। आपने सुते सिदकिया राजन, अज पता चलिया तेरी महफिल दे चमार बैठे ने। मैं तो समझिया सी ब्राह्मण होणगे, अज पता चलिया तू शूदरां दे घिरिया होया है। महापुरुष की दृष्टि शूदर ओ जिस दे विचार नीवें ने, तू तो शूदरां दे घिरिया होया है। ये सब चमार बैठे ने।
जनक ने आख्या, ऋषि जी चमार कैसे? तो आपने कहा, इन्होंने मेरी चमड़ी वेखी है, इन्होंने मेरा शरीर वेख्या है। ते चमार वो है जिसकी दृष्टि चमड़े ते, जिसकी दृष्टि शरीर ते, जिसकी दृष्टि मन ते है वो मनोविज्ञानी है, ते जिसकी दृष्टि आत्मा ते वो संत है, भगत है, गुरमुख है। इन्हों की दृष्टि मेरे शरीर ते है, ये चमार ने, ये मेरे मन तक भी नहीं पहुँचे। इन्हों विद्वान मन्ना तो मैं किस तरह मना, इन्हों दार्शनिक विचारक मैं मन्ना तो किस तरह मना। इन्हों की तय कुछ भी नहीं है, इन्हों की दृष्टि बहुत थोथी है और उपरली है। और अपने विचारों के राही एहसास करा दिता जनक नूं, भावें मेरे शरीर दे 8 बल ने पर मेरे मन दे एक बल भी नहीं। भावें इन्हां ब्राह्मणां दे शरीर दे कोई बल नहीं पर इन्हां दे मन दे लखां ही बल ने, लखां ही विंग ने, लखां ही टेढ़ापन है। तो हकीकत है भगत कबीर जी का ऐसा कहना, जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट का है नहीं आया। भी जिस ढंग नाल जगत ते मैं आया, ऐ ब्राह्मण तेरा भी आउण दा ढंग होई है। माँ बाप दे जरिए मैं आया, माँ बाप दे जरिए तू आया। मेरे शरीर दे च लहू है, तेरे शरीर दे च भी लहू है, कोई दुध नहीं है। फिर तू ब्राह्मण कैसा ते मैं शूद्र कैसा। हकीकत है कि कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। जुलाहे दे घर जन्म लैके ते इतनियां फिलसफे पूरत गल्लां करनियां, ब्रह्म दी विचार देनी, दरअसल ये अखौती हंकारी ब्राह्मणां नूं चंगा ना लगे। ऐसा दौर चलिया बनारस दे च, आप दिते तरह तरह के इल्ज़ाम लगे और ये इल्ज़ाम प्रथम ब्राह्मणां की तरफों लगे, फिर मौलवियां की तरफों लगे। ये पहला ऐसा पुरुष बनारस का जिहदे नाल ये दोवें फिरकियां दे मुखी सहमत ना होए। उसका एक कारण, जद मौलवी ने कहा नीरू जुलाहे नूं कि पुत्र तेरा हुण 9 साल का हो गया, लिहाजा इसकी सुन्नत कराओ। और ये बकायदा शरा दा धार नहीं होवे। कहते ने माँ बाप राजी होए भी ठीक है। और इस्लामी जगत दे सुन्नत एक बहुत खुशी का दिन गिनिया जाता है। मिठाई वंडी जाती है, मेहमानां नूं भोज खाना खिलाया जाता है, आओ भगत की जाती है। और ये बालक अज तो शरा दे प्रवृत्त होया, इस गल की बहुत वड्डी खुशी मनाई जाती है। लेकिन कबीर ने सुन्नत कराण तो इनकार किया ते आप दे ये महाबोल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे इस ढंग नाल दर्ज ने कि सुन्नत करे जे तुर्क होएगा, मैं ना बदूंगा भाई, जोरे खुदाए को तुर्क करेगा, आपन ही कट जाए। सख्त सने कर तुर्क होएगा। हकीकत जे सख्त छुरी दे नाल, इंद्री कटण नाल जे कोई वाकई मुसलमान हो जाता है, तो ऐसा अगर रब चाहता सी तो रब स्वयं कट देंदा, परमात्मा ही सुन्नत कर देंदा। सुन्नत करे जे तुर्क होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार न छोड़े, तांते हिंदू ही रहिए। बड़ी कीमती गल कबीर कह गए ने, अगर पुरुष की सुन्नत करोगे तो स्त्री का की करोगे। तो स्त्री ते आखिर हिंदू ही रही, अद्धा शरीर मुस्लिम अद्धा हिंदू। कबीर ने सुन्नत कराण तो इनकार किया और आख्या कि शरीर के सारे अंग परिपूर्ण परमात्मा की तरफों संपूर्ण ने, ते मैं किसी भी अंग नूं घटाण नूं राजी नहीं। लेकिन आपने इस रस्म नूं भी मनण तो इनकार किया कि 9 साल के बालक नूं जद यज्ञोपवीत कराया जाता है तो आप इस संबंध विच भी कहते हैं, हम गर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो पढ़ते वेद गायत्री, गोबिंद हृदय हमारे। भी जिहड़ा सूत्र तू वट पा के गल विच पा देना ते कहंदा जनेऊ है, ये सूत साडे घर विच कतिया जांदा है, साडे घर विच बनाया जांदा है, असीं बनांदे हां। हम गर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे।
ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੂਤਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਠ ਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੂਤ ਨੂੰ ਕੱਤਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਤੇ ਵੇਦ ਗਾਇਤਰੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਹਿਰਦੇ ਹਮਾਰੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗਾਇਤਰੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ, ਅਖੌਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਕਬੀਰ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ